Assalamualaikum. Yeah, we are live now. अस्सलाम वालेकुम। PNY ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एंटिटी व्हिच इंक्लूड PNY training, PNY advertising and PNY Pink. PNY training is Pakistan based IT training institute. We have a facility of online classes, and from today's onward we have started our physical classes by following all the SOPs. So anyone who want to register in any kind of our services in the digital marketing, graphic designing, website development, media production, networking, and machine learning. So they can contact our training representative. In PNY advertising, we are advertise different businesses who want to build their website, digital marketing services. They can contact advertising representative. And PNY Pink is specially designed for the female who want to pursue their career in the field of IT. पिंक रिप्रेजेंटेटिव। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत प्यारी सी हमारी मतलब फ्रेंड है। मैं सबसे पहले उनको वेलकम करूंगी मिस राबिया उमर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू हुस्ना? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, राबिया की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह राबिया जो है सीईओ है, रोश डेवलपमेंट की सीईओ हैं और काफी अच्छा काम कर रही है और काफी अरसे से काम कर रही हैं। तो राबिया, सबसे पहले अपने टॉपिक पे जाने से पहले हमारी ये हमेशा से एक रीत रही है कि हम अपने गेस्ट की स्टोरी सुनते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज यू आर सो मच इंस्पिरेशनल लेडी, कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, द वे यू मैनेज योर मतलब हाउस लाइफ एंड वर्क लाइफ को आप मैनेज कर रही हैं, तो वो भी अपने में एक आप है। तो प्लीज आप अपनी स्टोरी बताएं कि आपकी क्या डिग्री थी और ये सारा कुछ और किस तरीके से आप सब चीजों को मैनेज करके रही। क्योंकि जब विमेन की बात आ रही है तो विमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स के ऊपर भी होती है, लेकिन वुमेन के अंदर अगर वो वर्किंग वुमेन और साथ में वो क्या कहते हैं होम मेकर भी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो आप बताएं कि आप कैसे इन सब चीजों को इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं, प्लीज। Just a small brief on myself, what I've been doing in the past. Currently, I'm the CEO for Roche Developments. We are into private equity, financial advisory, training and consulting. I started my career as a banker. I did my graduation in math, stats, economics from St. Joseph's, and then I joined the bank. I started my career from Grindlays Bank, and I worked there for around 3 years. Then I went to ABN AMRO. ABN se nikalte World Bank, and then like a lot of organizations changed, like with the passage of time. I've got overall, 20, 25 years of experience with banking, mostly retail and commercial banks. Recently, I did my law. I completed my LLB and then my LLM, my master's in law in 2018. And now I'm an MPhil in law, and I'm also registered for my PhD with University of like Liberty University of Virginia. I'm doing my doctorate program in like criminal justice and leadership. Besides this, I also did my master's in economics. This is it about myself. Thank you for inviting me today for this forum. I would be talking on the global economy and challenges faced by the globally and in Pakistan. I would like to start with the fact that the global economy is facing a lot of serious challenges in the 21st century. COVID-19 pandemic is just one part, which is a very serious issue globally. The increasing and like interconnectedness of the global economy has created a lot of problems. Some global problems are short term, and some global problems are long term. When we talk about short term problems, then you can relate to banking crisis or credit crunch, etc. Short term problems like relatively like short term problems होती हैं जो mostly जो global shocks हैं अभी तक they've been relatively short term. 1970s में आपको याद होगा oil shock आया था, वो अभी तक they have altered the whole oil industry. So basically when we talk about long term like challenges, they are different. Long term challenges में हमारे पास like global inequality आ जाता है, global poverty आ जाता है.
हमारा like environment आ जाता है, you know, lot of challenges which the whole world is facing right now. Yeah. So Pakistan, alhamdulillah, is one of the, you know, जिसे कहते हैं कि emerging, you know, countries in the world right now, and the whole world is looking up to Pakistan. Alhamdulillah, we've gone through COVID-19 pandemic. We are, you know, already going through the whole, you know, the process. But alhamdulillah, we've been better than other countries, like unlikely India or US or other countries जो ज़्यादा you know suffer किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को. Alhamdulillah, we've done a good job. By the end of 2019, you know, the government has been, you know, successfully, you know, overcome like the prevailing uncertainty, और government ने mitigate भी किया है balance of payment crisis को. But the daunting task of growth and unemployment is still a challenge for us, which is a very important challenge. And वही challenge जो है वो आगे determine करेगा कि future direction हमारा economically और politically क्या होगा. Steps taken to narrow down the external deficit has also been very successful than anticipated. Fiscal revenues have been very strong in spite of the economic slowdown. So basically, इस वक्त हमारे जो challenges हैं, हमें अपनी industries, अपनी exports को बढ़ाना है, अपनी industries को stable करना है. इस वक्त हमारा जो cost of doing business है is quite high as compared to other countries. So we have to look into this very serious issue. हमारा balance of trade का issue, हमारा budget deficit का issue, all these things are counting and increasing our pressure on our economy. Our industrial growth is slowing, and it would further slow, you know, like causing the poverty. The large-scale manufacturing sectors have shown some growth in the past, but right now they all are facing major challenges. Maintaining their businesses is a challenge right now कि वो अपने employees को maintain करें और अपनी payments को maintain करें और अपनी cost of doing business को maintain करें. So basically, it's a challenging time for the whole country, but alhamdulillah, I'm hopeful that inshallah things will be better. जी हुस्ना. जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के जो कि क्या चैलेंजेस हैं और उसके इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर है, कि सबसे पहले तो मैं आपसे जानूं कि सबसे पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे मुल्क में है ही, क्योंकि हर साल इतने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से जो है सर्टेन परसेंटेज जो है सिर्फ वो जॉब करते हैं और उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. अब ड्यू टू कोविड सिचुएशन वो चंक बड़ा हो गया क्योंकि कंपनी से छोड़ दिया. तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो एक चैलेंज है, जो क्योंकि एक पाकिस्तान की हमारा यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है या हमारी ओरिएंटेशन है, देयर इज अ वन ब्रेड अर्नर और 6 to 7 पीपल जो होते हैं उनको उन्होंने फीड करना होता है. हमारा 1 to 1 नहीं है कि घर में सब काम करें और वो इकोनॉमी को बूस्ट करें. एंड देन अगर हम अपनी कंसेंसस को देखें तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन. फीमेल आर डूइंग अ बिजनेस. आपको क्या लगता है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है इसको कैसे कॉप अप किया जाए? और एक यूथ का सबसे बड़ा चंक भी हमारे पास आ रहा है और अभी जो कोविड में बच्चे ग्रेजुएट हुए वो तो सबसे बड़ी सिचुएशन है कि अभी तो उन बच्चों की बात ही नहीं की जा रही अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि जिनका स्प्रिंग 2020 जो था वो लास्ट सेमेस्टर है एंड दे आर रेडी टू इंजेक्ट इनटू द मार्केट. तो आपको क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशन का क्या इफेक्ट और इस पे क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? Of course, Usna, ये आपने बड़ा अच्छा point raise किया, and which is a very serious issue, unemployment. हमारी income ऐसा deplete हो रही है. 30% of the income has been depleted. of अगर आप हमारे figures निकालें, मैं CERP की you know findings को काफी देखती हूँ और ये Center of Economic जो research program है, और उसमें I was shocked to see the you know situation at this time. It was not just Pakistan; it's all around the globe. Then unemployment is a challenge right now. इसका मेरे ख्याल से जो इस वक्त solution है, problem तो है, challenges तो हैं, but उसको overcome किस तरह किया जा सकता है? We can create you know startup companies. We can create jobs for people you know जो इस वक्त
इस वक्त who have lost their jobs. We can improve on our SMEs. हमारी small and medium enterprise is a very strong business. इसमें इस वक्त हम कोई like नई इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में सोच सकते हैं. हम एक नए जो इस वक्त के हालात हैं उसको इस वक्त तो बेसिकली जो इस वक्त करंट इंडस्ट्रीज हैं वही सफर कर रही हैं कि उनको अपने महीने की पेमेंट्स देने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो सैलरीज को किस तरह मेंटेन करें. It will take some time, but हाँ, with the passage of time, 3-4 महीने 5 महीने बाद, I think we should take this initiative और इसमें सबको साथ मिलके चलना चाहिए as a team, as a country, like as a community. हमें बहुत strong होना पड़ेगा और हम कुछ ऐसे like global जिसे कहते हैं initiatives पे काम कर सकते हैं जिसमें हम jobs create करने में help कर सकें. Like my company Roche, we are also into the recruitment process. We help companies like recruit, but इस वक्त of course जो उसका pace है वो काफी slow है. But what we are doing basically कि हमने एक opportunity, एक platform create किया है लोगों के लिए कि लोग हमें आके join करें. अगर हम salaries अभी नहीं भी दे सकते, but we are ready to share our revenues with them. Whoever will bring new business, they can get some part of the revenue generated. So basically, we need to, look into the fact कि हमें इस वक्त लोगों को moral support देनी है. People who've been out of their jobs, बस हर organization struggle कर रही है, चाहे वो कोई industry हो, चाहे वो कोई financial organization हो, इस वक्त हर organization struggle कर रही है, because it's a global, impact. तो impact तो हर जगह आएगा. But yes, what we can do, we can help State Bank, we can help the government, we can do so many, we can take so many new initiatives to increase the employment pace in the country. बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम सब मिलके as a team, as a community, as a country हम सब मिलके अगर एक साथ चल सकें और अपने जो इस वक्त के current challenges हैं उनको सब साथ मिलके face कर सकें. There's an other challenge जो कि हमारा इस वक्त आ भी रहा है, वो है टैक्स कलेक्शन, जो कि फाइलिंग का जो है शुरू भी हो गया है 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट पे. तो आपको क्या लगता है ये जो एक चैलेंज है, एक तो हमारा चैलेंज है कि हमारे डेफिसिट्स हैं वो, लेकिन हमारा ये जो एफबीआर है टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको इसमें बड़ी इन्हांसमेंट की गई और इस बार फॉर्म करके लोगों के लिए बहुत और ईज किया गया. तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक सेक्टर है, मतलब टैक्स जो कि लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और इस तरीके से हमें इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जब रिटर्न फाइलिंग की आती है. बीइंग अ सैलरीड पर्सन, मोस्टली पीपल, लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता है कि रिटर्न फाइल करने का मकसद क्या. देयर इज अ लॉट्स ऑफ मिथ्स फाइलिंग अ रिटर्न एंड एवरीथिंग. you know you are an investment and you have a banking career, so you know what kind of a mindset Pakistani people have while filing the return. तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक है, क्योंकि अभी शुरू भी होने वाली एक्टिविटी, तो आपको क्या लगता है कि ये टैक्स फाइलिंग या टैक्सेशन जो है बहुत बड़ा हमारे पे अभी इसके ऊपर जो है माशाल्लाह फॉर लास्ट 3 to 4 ईयर से बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको अच्छा होना चाहिए और ये चैलेंज को किस तरीके से लेना चाहिए और लोगों को एजुकेट होने की कितनी ज्यादा जरूरत है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम? Yes, it's a major challenge. Husna, tax collections is a major challenge these days. We, as you know, I've been working as a salaried class throughout my life, so I've been paying tax on a monthly basis. In fact, वो तो directly debit हो जाता था हमारे salaries से, and मुझे लगता था कि salaried class ही है जो सबसे ज़्यादा tax देती है और time पे देती है. So basically every individual उनकी इस वक्त जो credibility का भी issue है, चाहे वो कोई like industrialist हो या चाहे वो कोई salaried person हो, कोई भी हो, उसको honestly अपने आप को justify करना है और government को support करना है इस initiative में. We need to look into the fact कि हमारे पास in terms of tax consultants या in terms of income tax lawyers, इसमें हमारे पास कुछ लोगों की कमी है जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इस तरफ आना चाहिए. लॉ की फील्ड में बहुत लॉयर्स हैं और जनरल सिविल लॉयर भी हैं और कॉर्पोरेट लॉयर्स भी हैं, बट मुझे लगता है इनकम टैक्स लॉयर्स की बहुत कमी है इस मुल्क में. वी नीड टू ब्रिंग पीपल ऑन दिस साइड. वी नीड टू like give them the confidence that इसमें एक बेहतर करियर है उनके लिए और आगे जाके it's a very vast field. So I believe lot of income tax consultants, lot of income tax lawyers, they need to be increased
ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, थोड़ा मार्केट अवेयरनेस हो कि टैक्स को किस तरीके से, बहुत से लोगों को पे करना चाहते हैं बट उनको सिस्टम का नहीं पता, प्रोसेस का नहीं पता, दे नीड हेल्प. सो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के साथ यही मसला है, दे वांट टू पे बट दे डोंट नो हाउ टू, सो दे नीड टू बी गाइडेड. सो आई गेस वी नीड टू look into the fact that we need to recruit people on the side, or we need to identify people on the side, जैसे कि मैंने बताया लॉ की फील्ड में या in terms of consultants के लोगों को अवेयरनेस मिले. ओके अच्छा, एक जो हमारा चैलेंज है जो कि ये क्या कहते हैं, ये चैलेंज के अंदर ये आ गया कि जितने ज़्यादा जो है हमारी मार्केट को कैप्चर कर लिया गया है चाइना की चीज़ों ने और चाइनीज प्रोडक्ट ने. आप देखते हैं कि आप यू जस्ट वॉक अराउंड, सो देयर इज अ स्टोर $1 शॉप विद द नेम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ अ नेम, कैश एंड $1 शॉप. तो उस तरीके से हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि हमारी मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी, वो कहीं खो गई हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना की तरफ से, जो कि चाइना का माल कहते हैं आता है, उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि पहले जो आपकी कंट्री के अंदर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी कंट्री के अंदर ही कंज्यूम हो रही है. नाउ वी आर importing good from another country and consuming in our country, but the production side, the manufacturing side is suffering. तो आपको क्या लगता है कि ये भी तो एक चैलेंज है जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई है, और हमने जो अपना मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है, हम में एक वो आ गया है कि हम उस चीज, पाकिस्तान की बनी हुई चीजें हमें मिलती हैं लेकिन हमारा उन पे कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बिल्ड हो पा रहा, हम नहीं लेना चाहते, हम बाहर की प्रोडक्ट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते. इट्स नॉट मेड इन चाइना, एनी कंट्री, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इंटरनेशनल हो गया, कि वहां से चीज आती है तो हम कहते हैं ये चीज ठीक होगी, लेकिन मेड इन पाकिस्तान है तो इसकी क्वालिटी नहीं ठीक होगी. तो ये भी तो एक चैलेंज है ना कि हम अपने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप खुद नहीं करे, बीइंग अ नेशन. प्लीज इसके बारे में. Yes, I agree with this fact, Husna. हमारा export, we are known for our basmati rice, for example. हमारा जो बासमती राइस पाकिस्तान से दुबई जाता है तो उसकी ब्रांडिंग चेंज होती है और वो किसी इंडियन ब्रांडिंग के नाम से फिर आगे सेल किया जाता है. I know people who've been doing this. I don't want to mention their names, but this is happening. So हमारी फिश यहाँ से जाती है, कोई प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं होती, ना पैकेजिंग होती है, और वो आगे दूसरी कंट्रीज हमारी ही कमोडिटी को बेहतर तरीके से पैकिंग और उस पे थोड़े से ब्रांडिंग में ऐड करके उसको आगे सेल करते हैं. So basically we need to improve on our packaging side, on our branding side, कि हम किस तरीके से अपनी commodity को हम किस तरीके से मार्केट में competitive होते हैं. इस पर competitiveness का बड़ा मसला है. इस वक्त हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है कि अगर हमने अपनी गारमेंट्स भेजनी है तो यूरोप ही भेजनी है खाली. क्यों भाई? वी हैव मिडल ईस्ट, वी गॉट सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशियन स्टेट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, 11 स्टेट्स हैं, इसमें इतना कुछ हो सकता है, बट पाकिस्तान की इतनी प्रेजेंस नहीं है. बल्कि पाकिस्तान इज अ मेंबर स्टेट बट प्रेजेंस नहीं है. वी नीड टू लुक इनटू दिस कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे करें. एक्सपोर्ट हो रही है बट उसको किस तरीके से एनहांस किया जाए. एक्सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितने इंसेंटिव्स भी निकाले हैं एक्सपोर्टर्स के लिए. आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मिस्टर रजा बाकर, स्टेट बैंक गवर्नर. उन्होंने काफी एसएमई सेक्टर और एक्सपोर्टर्स को एनहांस करने के लिए काफी नई स्कीम्स लॉन्च की हैं और इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है. तो वी नीड टू लुक इनटू द फैक्ट कि हम कहाँ गलत हैं और हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. तो हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है, थोड़ा हमें अपने ब्रांड को रिकग्नाइज करने की जरूरत है, ब्रांड को मार्केट करने की जरूरत है. जिस तरीके से हमारा बासमती राइस है वो उसी तरीके से जाए. हमारी पिंक सॉल्ट है, हमारे नाम से आगे जाए जहां भी जाती है. हमारी जो वो है सी फूड एक्सपोर्ट है वो हमारे नाम से आगे जाए. वाई सम अदर कंट्री? चाइना, ऑफ कोर्स जो लोग चाइना के साथ काम कर रहे थे, ट्रेडिंग और काफी चीजें चाइना के साथ कर रहे थे, वो सब अफेक्ट हुए हैं. ये कोविड ने इम्पैक्ट पूरी कंट्री किया, पूरे ग्लोब को किया. तो वो सारे लोग अब अफेक्टेड हैं. अब उनको उस इम्पैक्ट को किस तरीके से कम किया जाए और उनको किस तरीके से इनकरेज किया जाए कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. चाइना इज हेविली स्पेंडिंग ऑन आवर इकोनॉमिक जोन्स. हमारे इकोनॉमिक जोन्स को सिंध है, फैसलाबाद हो गया, हतार हो गया, दे आर इस वक्त काफी हैपनिंग सीन हो रहा है कि चाइना इज इन्वेस्टिंग इन देयर. सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट कि पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप को देखते हुए और देखते हुए कि हम क्या अपॉर्चुनिटी चाइना के साथ और किस तरीके से चाइना को लेके और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे किस तरीके से एंटर हो सकते हैं. ये भी कन्वर्जन मार्केट है.
how can we explore that market? So we need to look into these issues. Yeah, I totally agree with you. The other challenge is कि हमारा एक ये भी एक challenge के अंदर ही आता है कि हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे पास इस वक्त वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारी आबादी भी, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह के स्किल सेट हैं, या एकेडमिक साइड जो है वो वीक हो रही है टू विद द कॉर्पोरेट साइड के जो स्किल सेट एक इस वक्त ज़रूरत है मार्केट की, वो शायद प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उस तरह की प्रोडक्ट नहीं जो है यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर पा रही हैं, जो प्रोड्यूस होती है वो ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है हमारे मुल्क से, बिकॉज दिस इज द रियल इश्यू कि ब्रेन ड्रेन जो है बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं जो कि अच्छे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी तो एक इश्यू है, और किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस करें प्रोडक्टिव, क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव रिसोर्स जो कि मार्केट में इंजेक्ट और उस आउटपुट क्या कहते हैं कंसीडर करें, क्योंकि एक आई वाज सिटिंग इन द कन्वर्सेशन इन विच दे सेड कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी तो है बट प्रोडक्टिविटी कहीं कम होती जा रही है, एंड द पीपल हु स्टार्ट देयर वेंचर दे आर मोर प्रोडक्टिव देन द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोगों को सिर्फ पता है कि सैलरी लेनी है और थोड़ा सा काम करना है, एंड हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का भी ये थोड़ा सा कल्चर है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि शायद ये अलमिया है इस मुल्क का कि अभी प्रोडक्टिव, वी आर नॉट प्रोडक्टिव द वे वी वांट टू बी और जिस तरीके से हमें होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा, लिटरेसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी औरतें जो कि घरों में बैठी हुई हैं, उनका लिटरेट होना बहुत जरूरी है। विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, औरतों को एजुकेट करने की जरूरत है, उनके अंदर स्किल डालने की जरूरत है कि वो कोई स्किल सीखें और कुछ आगे कर सकें। सिंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में लाया गया था और उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज का सेटअप को इनकरेज किया गया था, जो अभी भी किया जा रहा है, उसमें वी कैन हेल्प द वुमेन सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज in these areas and help themselves and earn money and अपने आप को स्टेबल करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस पर डिग्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशंस। हमारे इंजीनियर्स माशाल्लाह केमिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, इतनी नस्ट है, JIK है, हमारे पास एक से एक टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। वी शुड इंक्रीज कि कोई ऐसी लाइक प्रोडक्टिव चीज उन यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो जिसमें हम कुछ आगे बढ़ सकें। जैसे मैंने चाइनीज लैंग्वेज पे मेरा बहुत फोकस है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज लैंग्वेज को इनकरेज किया जाए। बहुत से लोग जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं या जो बच्चे आगे जाके इंशाल्लाह लाइक पाकिस्तान चाइना के लिए पिलर बनेंगे, उनको चाइनीज लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। दे शुड इनकरेज लाइक इसकी जो इंट्रोडक्शन इन ऑल यूनिवर्सिटीज एज अ लैंग्वेज। सो इसमें बड़ा हेल्प होगा। एक लैंग्वेजेस का सीखना हेल्प करता है। जर्मन लैंग्वेज हो गई, चाइनीज हो गई, इट हेल्प्स देम आगे बढ़ के कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, तो इट मैटर्स कि अगर उनको दूसरी लैंग्वेज आती हो। तो आपकी डिफरेंट स्किल सीखना आपका मैं जैसे भी रिसेंटली एक US की कंपनी है Brassy.org करके, ये जो सिस्कॉम के पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर मैंने पाकिस्तान में वेंचर किया है और मैं लोगों को सप्लाई चेन पे सर्टिफाई करवा रही हूँ। इसकी बेसिस पे स्टूडेंट कैन गेट जॉब्स अब्रॉड। वही सर्टिफिकेशन जो US में $1590 की है, वी आर गिविंग देम इन 60,000 रुपीज। ये हमने खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये पैकेज निकाला है। So मेरा यही है कि I'm trying to introduce this certification all over the universities. अभी हमारी डिफरेंट लेवल पे बात चल रही है यूनिवर्सिटी से कि इसको एज अ कोर्स बना के ऐड किया जाए। ये 40 आवर्स का प्रोग्राम है, उसके बाद एक एग्जाम है और उसके बाद आपको ANSI सर्टिफाइड की वो मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलती है। तो वी नीड कि डिग्री के साथ साथ आप अपने आप को सर्टिफाई भी करें डिफरेंट स्किल्स पे, ताकि उनकी बेसिस पे आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलने में आसानी हो। बट देयर इज अ माइंडसेट राबिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो वो उनका सिस्टम था कि उन्होंने BA कर लिया और BA के बाद वो नौकरी करना शुरू की, तो जिस दिन वो रिटायर हुए तो उस दिन वो ऑर्गेनाइजेशन से गए। बट द मार्केट इज सो वॉलेटाइल कि इफ योर डिग्री इज 3 year old you are considered that you are not suitable for the market, so the learning is more important and learning has to go on। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, you have to do your learning। Like I did my masters in economics in 1996, but law was always my passion। मैं अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। मैंने 2018 में जाके अपना मास्टर्स किया है just because I wanted to study।
I felt like I'm getting wasted कि मैं सब काम कर रही हूँ और आगे पढ़ नहीं रही. तो I wanted to do another degree. अब मुझे PhD करने का है कि इंशाल्लाह 2 साल में मैं अपना PhD complete करूँ. So it's because I want to satisfy my own self that I've done this much. तो आपके अंदर भी एक खुद भी मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन और ये चीजें होनी चाहिए कि आप डिफरेंट स्पीकर्स को देखें. आजकल तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फ्री कोर्सेज करा रही हैं. हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कॉर्नेल, ये सारे फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. यू नीड टू एक्सप्लोर. आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे यू कांट गेट एनीथिंग. यू नीड टू एक्सप्लोर एंड सी अपॉर्चुनिटीज. क्या क्या इस वक्त कोविड की वजह से, ठीक है कोविड में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं. इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो पहले कभी नहीं थी. So we need to explore, we need to add value, we need to do something extra. अपने mindset को खोलें, open mindset के साथ इंशाल्लाह explore करें तो बड़ा कुछ हो सकता है. Yeah. There is an other factor जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे जैसे कि हमने पहले भी बात की कि फीमेल्स को लर्न करना चाहिए और फीमेल को, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली देयर वाज अ रिसर्च के तकरीबन जो है जब मेडिकल का फर्स्ट ईयर होता है तो उसके अंदर जो रेशो है फीमेल्स की जो है माइंड में गलत हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ तो अगर कोई कि इतनी रेशो होती है कि 70% फीमेल होती है और 30% मेल होते हैं. बट आफ्टर 5 ईयर who opt for the job उनमें से सिर्फ 5 to 7% जो है जो करियर को pursue करती है and rest of the get married because they want a good proposal, so that's why they join the medical field. So ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है because there is a one doctor, तकरीबन अब तो ये रेशो बढ़ गई है, ये 2018 के अंदर था कि 1 डॉक्टर इज इक्वल टू 50 पेशेंट के. एक डॉक्टर जो अगर वो एक वक्त में 50 मरीजों के बराबर है जो कि रेशो बहुत कम है. तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उसमें फीमेल्स आ तो बहुत रही हैं लेकिन करियर को एज अ करियर नहीं ऑपरेट कर रही, तो ये जो इतना बड़ा गैप आता जा रहा है ये गैप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इस वजह से कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि देयर वाज अ डिस्कशन कि फिर लड़कियों को डॉक्टरी की फील्ड में लाना ही नहीं चाहिए और बॉयज के लिए कोटा सिस्टम ले आना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मेल जाएं, ताकि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है क्योंकि वी आर बिलोंग टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. बस देर जो हमारी हमारे जो रूरल एरियाज है जो कि हमारे सबसे बड़ा एरियाज है वहां पर डॉक्टर्स की, अच्छे हॉस्पिटल्स की, जो कि इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है फॉर एनी कंट्री. तो वो आपको क्या लगता है कि ये जो एक प्रोफेशनल डिग्रीज है उनके ऊपर ये जो फीमेल्स के माइंडसेट को चेंज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले हुस्ना आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो 64% है. हमारा फोकस इस वक्त रूरल इकोनॉमी पे होना चाहिए. हमें इस वक्त देखना चाहिए कि जो लड़कियां घर बैठी हुई हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते पॉवर्टी की वजह से, वो मेडिकल लाइक यूनिवर्सिटी क्या वो उनको स्कूल में पढ़ाना मुश्किल है बच्चों को. अब TCF स्कूल्स हैं, दे गिविंग फ्री एजुकेशन. तो पेरेंट्स के अपने ऊपर भी है कि वो लाइक बच्चों को पढ़ाना चाहते भी हैं कि नहीं. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लाइक लड़कियां एडमिशन लेती हैं बट दे लीव इन द मिडल ऑफ द रोड, for no rhyme or reason. Probably they have to get married or their families don't allow to continue their studies, which is absolutely wrong. I agree with you. But then again आपके अपने ऊपर भी होता है. अब आजकल बच्चे वो बात नहीं है जो 10 साल पहले थी. अब इट्स डिफरेंट. बच्चे इनोवेटिव हो गए हैं, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, बच्चे ऑनलाइन पे इतना कुछ आ गया है. ऑनलाइन पे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस वक्त ऑनलाइन है. इस वक्त आपको पता है फिजिकल ऑपरेट नहीं कर रही बहुत सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी. They're teaching online. तो आपके अपने ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. It's not about parents, it's not about social pressures. तो देखें कभी कम नहीं होते. Social pressures अपनी जगह रहेंगे और अगर मैं और आप बात भी कर रहे हैं और हम एक नई एक स्ट्रेटजी भी बना लें तब भी ये इशू खत्म नहीं होगा. But it all depends on your own self कि आप कितने पैशनेट हैं, आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं. आजकल बच्चा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेरेंट्स का भी कसूर मैं कहूंगी, थोड़ा सा उनके पॉवर्टी के चैलेंजेस भी हैं. तो वो सोचते हैं कि बच्चा अगर आज हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है हम उसको पूरी करें. अगर इसकी शादी आज 18 साल की या 19 साल की उम्र में हो रही है और आगे जाके उनको उस तरह की रिश्ते ना मिले तो उनके लिए भी एक सोशल चैलेंजेस भी हैं. बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि यही बच्चा आगे जाके करियर बनाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है. आजकल इक्वल टर्म्स पे लोग देखते हैं. यही करियर बना के आगे किस तरह सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, किस तरह कंट्री की लिटरेसी रेट को बेहतर करेगा. They don't think like that. So basically we need to change our mindset. That's the main problem. Yeah, I totally agree with you because might be we are stuck in the middle of a boat
जहाँ पे हम ना इधर हो रहे हैं ना इधर हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक चैलेंज है, दिस इज द सोशल मीडिया चैलेंज. We are using social media challenge without, आप कह लें कि, and sometimes people are commenting like below the belt. I mean, they don't know कि अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा जाते हैं तो हम उसको इतना बुरा कर देते, जैसे कि there is a recent case जो कि मोटरवे के ऊपर आया है, and people are commenting so many things. Some are the favor of the lady, and मतलब there's a lot. So I'm not going into the case, बट दिस इज द सोशल मीडिया चैलेंज जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बट दे आर अफेक्टिंग अस. तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरीके से लोगों को यूज करना चाहिए और क्या इनके रूल्स होने चाहिए ताकि हम बच्चों को, हमें पता हो कि आपने अपनी जो है सोशल इमेज को कैसे सही रखना है. और कुछ तो बहुत ज्यादा ही फेक वर्ल्ड में चले जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बनाया किस लिए गया और पाकिस्तान में यूज किस तरीके से हो रहा है, ये दो एक डिफरेंट डिबेट है. तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? Social media is playing a very important role these days, बल्कि globally, not just locally, globally. चाहे वो LinkedIn हो गया, चाहे वो Facebook हो गया, चाहे वो Instagram हो गया, चाहे वो Twitter हो गया, I mean, it's playing a very important role. And especially at the time of COVID and pandemic, जब लोग घरों में बंद थे और they had no other thing to do, so this was the only thing which was helping them, and helping them coming out of this like situation. So I guess इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लें कि सोशल मीडिया एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है. नेगेटिव रोल तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बट यस, सोशल मीडिया एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है. लेकिन हाँ, लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, बजाय के लोगों पे नेगेटिव कमेंट्स करने के उनको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखें. अगर कोई अपनी अच्छी चीज शेयर कर रहा है और इंस्पायर हो रहा है वो कि वो शेयर करना चाहता है आगे, instead of putting negative comments for that person, they should look from a positive perspective also. So I think लोगों के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा ये चीजें आने की जरूरत है. सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं है. सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक को दूसरे से इंटरेक्ट करने की. आई गेस इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, उसको आपने सही तरीके से करना है, पॉजिटिवली करना है, और इसको किसी गलत तरीके से मिसयूज नहीं करना. या जिससे जो है किसी दूसरे के सेंटिमेंट हर्ट हो. वी नीड टू बी अ Exactly. रिस्पॉन्सिबल एंड द माइंडफुल सिटीजन राइट नाउ. अच्छा, True. अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम चैलेंजेस की बात करें, इस वक्त एक चैलेंज है जैसे कि अगर जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है कि सेविंग क्योंकि बहुत जरूरी होती है आपका लिविंगहुड चलाने के लिए. देयर इज एक्सपेंस, मतलब आपकी स्पेंडिंग होती है और आपकी सेविंग होती है. तो अब किस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन चीजों के ऊपर भी बात करने के लिए किस तरीके से पैसों को सेव किया जाए, क्या होना चाहिए. जैसे कि अब कहा जाता है कि डोंट, जैसे कि ये एक इकोनॉमिक्स का, आप जैसे इकोनॉमिक्स है कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, उसको डिफरेंट. तो किस तरह की सेविंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे पूछ रही हूँ कि लोग कर सकते हैं. वो आपको क्या लगता है कौन कौन सी सेविंग एक्टिविटीज है जो लोगों को करनी चाहिए, दे आर गोइंग टू बेनिफिशियल देम, क्योंकि सिंगल हैंड इनकम जो है इट्स नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल योर लिविंगहुड. तो उसके बारे में आप बताएं प्लीज. उतना एक प्रोडक्ट है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफर कर रही है, वॉलंटरी पेंशन. इसमें आपको साल के एक दफा पैसे देने होते हैं और 10-15 साल तक आपको पैसे भूल जाए. इसमें डबल ट्रिपल रिटर्न्स हैं. लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. इवन आई डिडंट नो, जब तक मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आई वाज द हेड ऑफ नॉर्थ फॉर एचबीएल एसेट मैनेजमेंट फॉर 2 years. That time I came to know that there is this plan for like voluntary pension. So it's a very good plan and I guess people should opt for it. दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज इतना कुछ ऑफर कर रही हैं हेल्थ के लिए. आपके हेल्थ कार्ड्स बन जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं, यू हैव अ हेल्थ कार्ड विद यू, इट हेल्प्स यू सेव. बजाय कि आप हॉस्पिटल के बिल्स दें, वो हेल्थ कार्ड आपको फ्री रूम भी दे देता है, आपका इलाज भी फ्री हो जाता है. हेल्थ कार्ड्स पे इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज, हर इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट ये ऑफर कर रही है और बड़े अच्छे सब्सिडाइज रेट्स पे कर रही है. आपके मैरिज प्लान्स हैं, आपकी सेविंग के प्लान्स हैं 10-12 साल के, हर साल, लेकिन आपको टाइम पे पेमेंट करनी है. बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 साल पेमेंट की और फिर आगे पेमेंट्स कंटिन्यू नहीं की. दैट वोंट वर्क. उनके लिए ये प्रोडक्ट वाइबल नहीं है. वो लोग जितना अपने आपने जिस तरह कहा कि आपको सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए. आई थिंक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके जो भी आपका महीने का बजट है, जो आपको लगता है कि आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं, उसको इस तरह के इंसेंटिव प्लान्स में
वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स में, स्टेट लाइफ की बड़ी अच्छी पॉलिसीज हैं, EFU की बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं। EFU का जो हेल्थ कार्ड्स हैं, इट्स अ वेरी गुड हेल्थ कार्ड। इनकी जो है लाइक लाइफ की स्कीम्स हैं कि आप 1 साल का पैसा दें और फिर उसको हर साल तक 10 साल तक देते रहें, और लाइक 10 साल बाद आपको ऑलमोस्ट डबल इसमें मिलता है, और आपकी लाइफ भी सिक्योर होती है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर है पीछे, आपको वो टेंशन नहीं है कि आपकी फैमिली का क्या होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त बहुत बेहतर हो गया है पाकिस्तान में। देखें 20-30% प्राइसेस राइज हुई है, इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप डाउन पेमेंट देखिए, कोई भी बुकिंग कराते हैं, आगे जाके पैसा बढ़ ही जाता है। रियल एस्टेट कभी आपको लॉस नहीं देता। तो रियल एस्टेट इज आल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जो इस वक्त बहुत बूम पे इंशाल्लाह आ जाएगा और बेहतर हो रहा है। तो रियल एस्टेट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हर बैंक के पास, सेविंग अकाउंट्स हैं, आप सेविंग अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू पुट योर सेविंग्स इनटू सेपरेट baskets. Okay, I totally agree with you. There's an other question कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक माइंडसेट है कि हमें कहा जाता है कि आप जो है पहले अपनी एजुकेशन कर ले, खत्म कर लें। जैसे कि 25 साल की उम्र में आपने करियर को स्टार्ट करें, जब 25 साल की उम्र में जाते हैं तो 25 और 30 में उसके 5 साल का अरसा होता है जिसके अंदर उसको नौकरी करनी है और वो सारा कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ जगह पर कहा जाता है कि जैसे कि हमारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर 16 इयर्स की एज से जो है इंडिपेंडेंट करने का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो आपको मैनेज करना सिखा रहा होता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने, आपने सेविंग कैसे करने। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कल्चर है इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमी की, अगर बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जॉब्स भी करें तो ये कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बच्चों को बनाएगा? इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? बिल्कुल आई एग्री विद यू। यूएस वगैरह में तो 18 साल का बच्चा लिटरली अलग हो जाता है, और they don't want to live with the parents and they want to be separate and make their separate earnings and have a separate life, be independent. So I guess अभी यहाँ के यूथ भी थोड़ा सा इस तरफ आ रहे हैं। अब आप देखें कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट निकला है, बहुत से मैंने देखा है बच्चे TRG या इस तरह के जो कॉल सेंटर्स हैं उस पर लाइक नाइट शिफ्ट भी करते हैं, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ दे आर डूइंग और जॉब्स। 40-50,000 पर मंथ उनको मिल जाता है, और they are trying to live their like earn their living through these call centers and इस तरह की jobs में। So I guess restaurants में मुझे नजर आते हैं young crowd, youth काफी नजर आता है कि थोड़ा सा restaurant में भी they are like doing their jobs. So I guess अब वो हल्का हल्का वो ट्रेंड उस तरफ आ रहा है, बिकॉज अब मसला ये है कि we don't have any choice। अब जो सिचुएशन चली गई है जिस तरफ के, आधी से ज्यादा इंडस्ट्रीज इस वक्त बंद होती नजर आ रही हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हर तरफ हो रही है, इस वक्त सिचुएशन एक अलग फेज में जा रही है। सो इस सिचुएशन में आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि हमारा यूथ आगे आए और हमारा यूथ जो है वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करे। तो आई गेस ये बहुत अच्छी बात आपने की, इस पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, बल्कि अपॉर्चुनिटीज निकालनी चाहिए यूथ को डेवलप करने की। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की फील्ड में अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बीच में दे वर लुकिंग फॉर O level A level स्टूडेंट्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स वो रन कर रहे थे, और वो महीने के लाइक 10,000 रुपए दे रहे थे, बट आप उनकी नॉलेज देखें कि वो आगे किस तरीके से क्रिएटिव बच्चों को कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, और आई थिंक इस तरफ रुझान आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओके, अच्छा, अगर हम बात कर देखें जैसे कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब की जो क्या कहते हैं जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनके पास आइडियाज़ हैं और सब चीज़ें हैं। प्लान 9 हो गया, ये जो PITB के अंदर ऐसे जो ये स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशंस बनते जा रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट अगले 5 सालों में या 10 साल होगा कि आपको? तो मुझे तो लगता है कि ये एक पॉजिटिव वेव है जो कि जब 5-6 सालों में कि हमारे मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो एज कम्पेयर टू जॉब्स, क्योंकि जॉब का जो है रुझान अब नई जनरेशन में कम हो रहा है, हर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है जो इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट अब हमारी यूनिवर्सिटीज में और बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस प्लान लोग इंटरनेशनली जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगले 5 सालों में या 10 सालों में? इफ यू आस्क मी, मुझे तो बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, खासतौर पे
जिस तरह मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटीज आगे आ रही हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं। अभी NED यूनिवर्सिटी ने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जिसमें स्टार्टअप कंपनीज को डिजिटल जो आ रही है, डिजिटलाइजेशन पे फोकस आ रहा है, उसको इनकरेज कर रहे हैं। और काफी स्टूडेंट्स यहाँ इंटर्नशिप्स भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं। मेरे बेटे ने भी यहाँ पे इंटर्नशिप की थी। एंड आई थिंक इस तरफ ट्रेंड आ रहा है। और आई गेस हमारा फोकस थोड़ा सा डिजिटल की तरफ भी आ रहा है। और जिस तरह स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर साहब का फोकस भी थोड़ा डिजिटलाइजेशन पे है। और इस दफा मैंने एक स्पीच उनकी अटेंड की थी एंड इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच, जिसमें उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें खुद आना पड़ेगा। ठीक है, हम एक रेगुलर लाइफस्टाइल के आदी हैं कि जी बैंक जाना है और ऑपरेट करना है और चेक के थ्रू पैसे निकालने। व्हाई व्हेन वी कैन ओपन आवर अकाउंट इन डिजिटल बैंकिंग। अभी जो रोशन स्कीम निकाली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना घर बैठ के डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं, जो अकाउंट खोलना चाहते हैं। उनको इनकरेज करने के लिए कि वो पाकिस्तान आए और इन्वेस्टमेंट्स लाएं और रेमिटेंस लाएं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें आके। पाकिस्तान उनका मुल्क है, उसको देखें। तो ये थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ अब स्टेट बैंक की तरफ से भी फोकस आ रहा है। सारे बैंक्स भी अपने डिजिटल कार्ड्स और डिजिटलाइजेशन और मोबाइल बैंकिंग और लाइक डिजिटल बैंकिंग और इस तरफ आ रहे हैं। पहले वो फोकस नहीं था जो अब आ रहा है, ब्रांचलेस बैंकिंग। बिल्कुल अब उस तरफ चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट हो रही हैं। सो और पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से इस तरफ लोग आ रहे हैं। और आपको पता है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो उस वक्त जाके मिडल ईस्ट में इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स पे लगते हैं। और बड़े जो सारी स्किल्ड लेबर है हमारी मिडल ईस्ट की, वो मोस्टली पाकिस्तानीज है, विच इज लाइक वेरी जैसे कहते हैं प्राउड थिंग टू से। सो हमारा मुल्क पीछे नहीं है इस चीज में, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे जिस तरफ अब फोकस आ रहा है यूनिवर्सिटीज का भी और लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी, स्टेट बैंक का भी, SECP का भी, तो आई गेस थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से अब हम जो है जा रहे हैं, सो डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए भी देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट जो कि पे करनी पड़ती है। एंड आज हम अगर ये कॉस्ट सफर कर जाएंगे तो शायद हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छा पाकिस्तान देख लें, क्योंकि किसी को तो सफर करना है। राबिया, अगर हम जैसे कि हमने बात की है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे? क्योंकि सबसे सिक्योर करियर जो हम कहते हैं बैंकिंग करियर, तो किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किस तरह के स्किल्स बच्चों को सीखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, तो किस किस तरह के, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर चीजें बदल रही है तो उसके साथ जो स्किल्स भी तो हमें उस तरीके के चाहिए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस किस तरह के स्किल्स होने चाहिए बच्चों को, क्या सीखना जरूरी है ताकि हमारे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हमारी ऑडियंस में ज्यादातर स्टूडेंट है तो उनको पता हो तो दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मैं जब HBL में थी तो आई वाज अ मेंटोर फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनीज, और हमने मैनेजमेंट ट्रेनीज को प्लेस करना था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और HBL बड़ा सिलेक्टिव बैंक है, वो टॉप 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है फ्रॉम ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज। तो बड़ा कोई चैलेंजिंग होता है कि आप MTO रोल पे HBL में आए। So it was a great experience for me to handle that mentor role for the management trainees. ये 2015 या 2016 की बात है शायद। एंड जब बच्चे मेरे पास आते तो पूछते थे कि मैडम कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि हमें जाना चाहिए। तो जब मैं उनको हर एक को या तो कॉर्पोरेट में जाना होता था या कोई जो क्रेडिट में जाना होता था, मैं कहती थी व्हाई डोंट यू वांट टू अप्लाई फॉर रिटेल साइड, रिटेल बैंकिंग में जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप तो रिटेल की तरफ भी देखें, रिटेल बैंकिंग है, थोड़ा डिजिटल बैंकिंग की तरफ आए, डिजिटलाइजेशन पे फोकस है। तो थोड़ा सा बच्चों का रुझान, एक उनको यही इंप्रेशन था कि कॉर्पोरेट बैंकर है या इन्वेस्टमेंट बैंकर है या कोई क्रेडिट साइड है, वो ही एक करियर बनाएगी, बट आगे और किसी चीज में उनको करियर नजर नहीं आता था। मुझे लगता है इस वक्त कंप्लायंस इज वन फील्ड जिसमें अब बहुत लोग इंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले अब आजकल FATF का आपको पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस फील्ड पर काम कर रही है। और अगर पाकिस्तान इस लाइक जिस सिचुएशन में इस वक्त है, आई होप इट कम्स आउट ऑफ इट और ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। तो बेसिकली कंप्लायंस पे इस वक्त बहुत बैंक्स का फोकस आ गया जो पहले नहीं था।
फ्रॉड प्रिवेंशन पे, फ्रॉड मैनेजमेंट की तरफ लोगों को आना चाहिए, क्राइम्स में, फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ आना चाहिए कि उसको देखें कि फाइनेंशियल क्राइम में किस तरह स्टडी कर सकते हैं और उसमें रिसर्च करें और किस तरह क्राइम को रोका जाए। जिस तरीके से क्राइम्स हो रही हैं बैंक्स में, इसको किस तरीके से रोका जाए, इसको कर्व किया जाए। तो कंप्लायंस हो गया, फ्रॉड मैनेजमेंट हो गया, इन एरियाज में भी अपने आप को लाया जाए, इसमें भी नए लोग, एमटीओ को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। आई गेस ये वो चीजें जिसमें आगे बहुत स्कोप नजर आ रही है मुझे, लुकिंग एट FATF एंड अदर मेजर्स। ओके, या इसी के साथ ही मेरा लास्ट क्वेश्चन था, हमारे शो का टाइम जो खत्म होता है। राबिया, थैंक यू सो मच PNY ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं आपके शुक्रिया अदा कर, लेकिन जाते जाते आप कोई एक अच्छी बात या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि उनको वो यहाँ पे एज अ क्या कहते हैं एंड नोट इस सेशन से लेके जाएं कि उनके लिए जो है वो लर्निंग का एक टिप हो जाए। तो प्लीज कोई अच्छी बात हमारे साथ शेयर करें। I'm also a motivational speaker. Whoever is attending our session live, they're most welcome to contact me anytime or my company. Whoever is looking for, counseling advice or a career advice or, training platform, online training का जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, if they want to certify themselves with supply chain and operations management, जो मैं करवा रही हूँ, or come into the field of insurance, हम insurance advisors भी hire कर रहे हैं on commission basis. We can't pay salaries right now, but we can pay very good commissions. So if anybody is interested, they're most welcome to message me. I'm on LinkedIn. Roche Development is also on LinkedIn. You can contact me anytime for any kind of career advice or any type of counseling. Thank you. Thank you. Thank you so much, Rabia, for the wonderful discussion and wonderful insights regarding the challenges and how it's affecting the Pakistan. And we hope कि हमारा मुल्क जो है वो सही राह पे वापस आए और हम इस, क्योंकि हमारे पास कोविड में we are a double kind of a crisis. हमारे पास एक तो हमारे अपने challenges थे and then we have a COVID. I hope we come out of all kinds of challenges. Inshallah. Inshallah. This is only because. Thank you so much. इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।